سید ہاشم رضوی صاحب ایڈیٹر ہیں وائس آف لداخ کے، انور حسین صاحب ہیں یہ بھی وائس آف لداخ سے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور محمد اسحاق صاحب ہیں جو کہ گلستان سے ہیں، اور ناصر الدین خفی ہیں جو کہ اکیڈمیشین ہیں اور ایک پوئٹ اور رائٹر بھی ہیں. The press exists and thus is a massive threat to the democratic structure of the country. So before concluding my speech, sir, I want to put some rights related to Press Club of Ladakh Kargil and some issues. لگے سر ہم چاہتے ہیں کہ سر اسے ایک دم میں پریس کلب جو ایگزسٹنگ پریس کلب ہے سر اس کے علاوہ ہمارے جو آلریڈی ایگریگیٹڈ جرنلسٹ ہیں سر ان کی جو آئیڈینٹی کارڈ ہے سر بار بار شکایت یہی آ رہی ہے سر لوکل جرنلسٹ سے کہ جو ایونٹ جو دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں سر جیسے ہمارے دراز ہے سر چکتن ہے یا اسی سب آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی سر ٹرانسپورٹ کو لے کے کافی دقت آ رہی ہے سر منیمم سیلری پہ بہت ہی کم سیلری پہ جتنے بھی جرنلسٹ سے سر کام کر رہے ہیں ان کی اتنی یہ نہیں ہے سر کہ اپنا گاڑی لے کے دور دراز علاقوں میں سر میں اپنے آپ کو بہت شکر گزار ہوں آفٹر ایبروگیشن علاقوں میں ٹیریٹری بننے کے بعد. اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو ایک طویل ہسٹری ہمیں نظر نہیں آتی ہے کرگل. جب ہم کارگل میں میڈیا کی بات کرتے ہیں تو صرف کارگل کی ہی نہیں، جب ہم کارگل کی بات کرتے ہیں تو جو سچویشن ہے وہ لیہ میں بھی تقریباً سے یہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں میڈیا کے لیے. میڈیا ابھی بولے تو ہم نے بالکل چینلس میں بھی چینلس ہیں یا یوٹیوب پہ ہی چینلس ہیں جو ان کے دھندے کو شاید تھوڑا سا ٹکر دیں گے تو تھریٹ لگنے لگا ہے. شاید اسٹیبلش نیوز پیپر کے آفیسز وغیرہ نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے ہی اچھا خاصا نیوز آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ان کے چلتے شاید ان کو تھوڑا سا لگ رہا ہو کہ سروائیول کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جیسے کہتے ہیں ہمیں پبلک تک لوگوں تک اچھی خبر پہنچانے کی ضرورت ہے. تو ایک تو جب ہم گورنمنٹ کی کوریج کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو ایک پبلسٹی کا ہے یا ایک کوریج ملے وہ مل جاتا ہے. تو بہت سارے جگہوں پہ جب ہم کوریج کرنے جاتے ہیں تو جیسے ہمارا پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تو وہاں پہ ایک چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. مجھے لگتا ہے یہی پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پہ سب میڈیا والے ہی ہیں اور آپ ہی سب مخالف ہو رہے ہیں. To different platforms now. You have different kinds of media, new media being one. At the end of the day, you're doing a good job. You've been covering events very well. We do appreciate the kind of hard work that you've been doing. The Information Department of UT Administration of Ladakh is grateful to all of you for having assisted us, supporting us in every event that we do and in every endeavor that we've done. Now, I'll tell you that yesterday we issued a notice for accreditation of fresh media persons with the government, with the UT administration, and the notice also says that the accreditation that was given in 2021, we can submit the applications to the Directorate of Information here in Kargil, and we have a deadline of 20 days. So it's going to be hand in hand kind of relationship between the Department of Information and all of you, because we cannot do much without your support and your intervention and assistance. So we are duty bound to actually make things easy for you as much as possible, to formulate guidelines so that you also, I keep reiterating, you are into responsible journalism. And to highlight how the government is implementing various schemes, bringing water to the poorest of the seriously tend to convey to people, just forwarding on WhatsApp what they just received from unknown people, and that's become a pastime, a hobby. One of our friends in the panel was saying that this could have a tough time dealing with such news. We in the Information Department feel lucky that at the helm of affairs we have a very serious and responsible officer, Madam Padma Amo, from the Indian Information Services. Since she's been around in the UT administration of Ladakh, she's actually left no stone unturned to make this department a very professional kind of a setup. And
सबसे पहले तो नेशनल प्रेस डे के मौके पे तमाम लद्दाख के जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी है उन्हें मैं दिल की अमी गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख के जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी है। तो इसमें सबसे पहले फेरोज साहब, मैं यही जॉइंट डायरेक्टर काश इम्तियाज़ साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले भी मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि एब्रोगेशन के बाद लद्दाख फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जितने भी पॉलिसीज़, जितने भी स्कीम, जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं वो लद्दाख यूटी बनने के बाद ही हुआ। इसमें मैं तहे दिल से DIPR करगिल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली सेक्रेटरी मैम आमो, DPO कारगिल और साथ ही साथ इम्तियाज़ काचो जॉइंट डायरेक्टर, क्योंकि उनके आने के बाद काफ़ी, जैसे हमारे बहुत सारे इश्यूज़ थे मीडिया फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करें, जिसमें एग्रेडेशन को लेके, पैनलमेंट को लेके, एडवर्टाइजमेंट को लेके और उसके अलावा भी काफ़ी इश्यूज़, और हमारे साथ ही साथ हमारे प्रेस क्लब के कुछ लैंड भी है उन्हें भी लेके काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में जॉइंट डायरेक्टर DIPR करगिल इन इश्यूज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे आला हुकाम तक पहुंचाए और हमारे जितने भी मसाइल है मीडिया फ्रेटर्निटी के करगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो जल्द से जल्द इजाला हो। तो हुसैन साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं मीडिया पर्सनस के लिए, तो किस तरह के चैलेंज फेस करने पड़ते हैं खास तौर पे? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि चैलेंज पे भी मैंने थोड़ा बहुत अपने प्रेजेंटेशन में मैंने रखा था। चैलेंज, जितना चैलेंज मीडिया में काम करना, ख़ित्ते लद्दाख में एज ए मीडिया काम करना बहुत ही चैलेंज है। और साथ ही साथ आपको भी बताते चलूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज हमें आता था दूर दराज इलाकों में, अगर हमें कोई शूटिंग हो या कोई प्रोग्राम हो, जैसे द्रास हो, पानीघर हो, चिकतन हो, तो ट्रांसपोर्ट को लेकर हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो उस पर भी जो है पॉइंट जो है वो नोट की गई है जॉइंट डायरेक्टर साहब ने, और मुझे उम्मीद भी है कि जितने भी हमारे चैलेंजेस अभी आ रहा है और आने वाले दिनों में हमें भी अगर जितने भी चैलेंजेस होंगे, हमें श्योर है कि आने वाले दिनों में DIPR करगिल इन पे फोकस करेंगे। शुक्रिया इसहाक साहब, प्रेस क्लब ऑफ करगिल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आज हमारे साथ शामिल हुए इस दिन। नेशनल प्रेस डे के मौके पे आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। हमारा एक बढ़िया इंटरेक्शन रहा, जैसे पहले भी रहता था, आज और भी खूबसूरत हुआ क्योंकि आपके नज़रियात हम तक पहुँची। आप डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और एंड पब्लिक रिलेशंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम पब्लिक तक भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम सीरियस बिजनेस में हैं अभी, और हम ये कोशिश कर रहे हैं पिछले जब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी बनी है लद्दाख, तब से कि गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं लद्दाख के हर हिस्से में, हर कोने में, वो पब्लिक तक अच्छी तरह अनफिल्टर्ड सामने उन तक पहुंचाई जाए, उनको पता चले गवर्नमेंट कितनी सीरियस है उनके वेलफेयर के लिए। और ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो इरादे आगे बना के रखे हैं, जितने भी और पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स आने वाले हैं और जितने गवर्नमेंट के कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम इवेंट्स होते हैं, वो भी उसके बारे में पब्लिक को भी पता चले, वो भी शिरकत करें हर इवेंट में, हर प्रोग्राम में। जी, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के 3 साल हो चुके हैं। फाउंडेशन डे भी 31 अक्टूबर को मनाया है। हर साल जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा, और जितने भी अच्छे अच्छे काम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं वो भी, उनको भी पोर्ट्रे करना है, रिफ्लेक्ट करना है, अच्छी तरह डिस्प्ले करके लोगों तक बताना है, लोगों को भी बुलाना है इन फंक्शंस में, ताकि लोगों को पता चले हम किस लेवल पे थे और कहाँ तक कितने आगे बढ़ चुके हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का रोल रहेगा आगे और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम लोगों को बताएं कि गवर्नमेंट की कितने अच्छे अच्छे वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी तरह हो सकती है, और हम एक प्लेटफॉर्म बने हुए हैं कि लोगों की कोई ग्रीवेंसेस, कुछ इश्यूज़ हों तो वो भी गवर्नमेंट तक आगे हम कन्वे कर सकें।